students, very good morning to all. तो चलो, let's start with your chapter number 7, that is diversity in living organism. I can say it as living world too, yes or no? Okay, चलो, if I am talking about your last lecture, तो last lecture में I have just spoken about some introductory portion, yes or no? What exactly do you understand by the term biodiversity? बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी. ओके, वी वेरी वेल नो दैट वी पीपल, वी ह्यूमंस आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच यू कैन नॉट सी, लेकिन अभी मेरे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. While I am speaking this lecture, number of microorganisms are going inside my mouth. Yes or no? Yes. Even these microorganisms are of different kinds. वो भी अलग अलग species होती है उनमें भी. Am I clear? Okay. चलो. Please look out of the window. What you can see? You can see different varieties of plants. Flowering plants you can see, non-flowering plants you can see, yes or no? Yes, even you can see cat, dog, calf, buffaloes, goat, sheep. Even you can see horse and elephants which sometimes visits your society for ride. Yes or no? Yes. Even at your home you see your mama, your dada, your brothers, sisters, siblings, yes or no? This is also a species. We human is a kind of species. Yes or no? Yes. So we itself are surrounded by ourselves. हाँ या ना? हाँ. तो बच्चों इसको कहा जाता है biodiversity. We are surrounded by number of living organism, varieties of living organism. ठीक है? So I hope the definition of biodiversity is very much clear to you people. In this lecture, I am going to explain you what is the base of classification. अच्छा, मैंने आपको last lecture में ये बोला था that it is not possible for us to understand each and every living organism, है ना? जैसे कि मॉस्किटो की स्टडी करो, हाउस फ्लाई की स्टडी करो, फिर मैं बोलूं बैक्टीरिया की स्टडी करो, फंगस की. बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस के अंदर बहुत सारी फंगस होती है. चलो सबको एक एक स्टडी करो, एक प्लांट्स को स्टडी करो, रोज को स्टडी करो, लिली प्लांट को स्टडी करो, मैंगो को स्टडी करो. इज इट पॉसिबल फॉर अस? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. सो व्हाट एवर टेक्सोनॉमिस्ट, व्हाट एवर बायोलॉजिस्ट डिड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों ऑर्गेनिजम्स को based on similarity and dissimilarity different groups में रखा. इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन. हमने क्लासिफाई किया different organisms based on certain characteristic, based on similarities, based on dissimilarities. हमने organisms के ग्रुप बनाए, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C. And we are understanding these groups. We are understanding these groups, not an individual organism, since वो हमारे लिए बहुत ही slow process, बहुत ही tedious process हो जाती है, right? Okay. So, what is the basis of classification? Classification की जरूरत क्यों पड़ी? What is the need of classification? आपको समझ आ गया? What is the need? Yes. Look here and say, what is the need of classification? Yes, very good. The need of classification is that we cannot understand, we cannot study each and every individual. So based on similarities and dissimilarities, we have classified organisms. We have classified organism in different groups and we are studying these groups. Again, that is for ease of human beings. Yes or no? Yes. ठीक है, तो चलो. If I am talking about the base of classification, तो the base of classification is characteristic. Classification का base क्या है?
The base of classification is characteristic. Are you people getting my point? Characteristic. Okay. If I am talking about characteristic, तो इससे क्या समझ आता है आपको? Let me give one example which is given in your NCERT textbook. Okay. If I am talking about characteristic, तो हमारे पास 5 fingers है. Yes, ये characteristic है. We people can move. ये भी एक characteristic है. Plants, do they move? नहीं, ये भी एक characteristic है. We live on land. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. फिश lives in water. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? हम मल्टी सेल्यूलर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है. अमीबा यूनिसेल्यूलर है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? यस. सो ये जो बेस है क्लासिफिकेशन का वो है कैरेक्टरिस्टिक. एम आई क्लियर? इन अर्लियर टाइम, बहुत साल पहले, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन साइंटिस्ट जिनका नेम है एरिस्टोटल. जिनका नेम क्या है? एरिस्टोटल है. उन्होंने बेस्ड ऑन हैबिटेट मतलब ऑर्गेनिज्म कहां पे रह रहा है. ऑन लैंड है ना, इन वाटर, राइट, और एयर. ओके, वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, उनका हैबिटेट क्या है भाई? वो लैंड पे रह रहा है, वाटर में रह रहा है, एयर में है. बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, तो हैबिटेट भी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ही हुई. हैबिटेट भी क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक हुई. सो बेस्ड ऑन हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया. बहुत पुरानी बात है. ओके, बहुत पुरानी बात है. इनको आप दादाजी बोल सकते हो, एरिस्टोटल. एम आई क्लियर? ओके, चलो. सो एरिस्टोटल classified organisms into different categories on the basis of where they actually live. Whether they are on land, in water, in air, कहां पे है ये organism. So ये जो classification system है वो बहुत ही easy है. But at the very same time it is misleading. क्यों मैंने ऐसा बोला? चलो देखो, certain examples here I want to plot. चलो, if we are talking about corals, नाम तो सुना होगा आपने. yes. चलो, if I am talking about your starfish, इसका भी नाम सुना है. if I am talking about octopus, इसका भी नाम आपने सुना है. yes or no? yes. if I am talking about blue whale, इसका भी नेम आपने सुना है. yes or no? corals, starfish, octopus, sea animals, right? Seahorse, I can say. Seahorse, etc. These all are the organisms which live in water. जो पानी में रहते हैं. मतलब इनकी जो हैबिटेट है वो क्या है? पानी. yes or no? the habitat is water. but can you see in any aspect these organisms are similar? बोलो आप. corals है, starfish है, octopus है, sea horse है, blue whale है. are these organisms similar in any other aspect? एक को छोड़ के ये सारे के सारे पानी में प्रेजेंट होते हैं. they live in water. yes, they live in water. but if we are looking at other characters, if we are comparing corals with starfish, with octopus, with seahorse, एक दूसरे के साथ कंपेयर कीजिए. can you find any similarities between this organism? What is your answer? Big no. What is your answer? Big no. They shares
only one common feature and that is they all live in water. उनकी habitat पानी है. बाकी these organisms are in no way similar to each other. ये एक दूसरे से similar नहीं है. ठीक है. तो बच्चों अब ऐसे क्लासीफाई आप ऑर्गेनिजम्स को करोगे तो इट विल बिकम वंस अगेन tedious for us to understand. Yes or no? Yes. तो जो आप कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करते हो वो एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए. एम आई क्लियर? यस और नो? सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक कौन सी लेनी है, विच characteristic we are going to take into consideration while classifying organisms is very much important. ऐसे ही कोई कैरेक्टरिस्टिक आप नहीं ले सकते. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आप क्लासिफाई करने के लिए ले रहे हो, that is very very important. Am I clear? Yes or no? So this characteristic forms the base of broadest division. फिर इसके अंदर कौन सी कैटेगरीज आपने ली, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ली, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सब ग्रुप्स. दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सब ग्रुप्स. अरे मैडम नहीं समझ में आया, सुनिए बात. मैंने आपको बोला दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. एनीवेज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक आई एम टेकिंग, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक. प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है. कौन सा है भाई? प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो. यूकैरियोटिक का मतलब जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो. Are you people getting my point? What I am saying? Yes or no? प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेल्यूलर है ना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई. तो कौन सा आएगा? मोनेरा. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक किंगडम है दैट वी विल अंडरस्टैंड बिट लेटर ऑन. ठीक है. चलो वापस से. यूकैरियोटिक है, इनमें 2 ऑप्शन आते हैं बच्चों. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? यस. तो सबसे पहले दिस इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज द ब्रॉडेस्ट वन. सबसे बड़ा. प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूकैरियोट्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. फिर हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ली? यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है. Are you people getting my point? If I am talking about multicellular, तो वापस से मैंने क्लासिफाई करने के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ली? Do they have cell wall or they do not have cell wall? तो ये मैंने नेक्स्ट स्टेप पे कैरेक्टरिस्टिक ली. यस और नो? तो ऐसे 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 ये सबसे बड़ा क्लास आई कैन से, और उसके अंदर छोटे 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 क्या बनते चले जाएंगे बच्चों? ग्रुप्स बनेंगे. दैट इज व्हाट आई मीन बाय सब ग्रुप्स. दैट इज व्हाट आई मीन बाय सब ग्रुप्स. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या बोला? यस और नो? कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे ही कोई भी नहीं ले सकते. द कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लेनी है क्लासिफिकेशन के लिए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके. तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक ली. न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो यूकैरियोटिक, वेल डेवलप्ड नहीं है तो प्रोकैरियोटिक. ये एक कैरेक्टरिस्टिक है विच फॉर्म्स ब्रॉड डिवीजन. विच फॉर्म्स ब्रॉड डिवीजन. अब पूछो यूकैरियोटिक में यूनिसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर है, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई. तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हो गए ऑर्गेनिज्म के. ठीक है. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स हो गए ऑर्गेनिजम्स के. सेल वॉल है तो प्लांट्स, सेल वॉल नहीं है तो यहाँ पे एनिमल्स. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? यस. तो
ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे ग्रुप्स बनते चले जाएंगे. Am I clear? And this forms the base of classification. This forms the base of classification. Am I clear? Yes or no? जैसे if I am talking about plants, यहाँ पे एक दूसरा example. If I am talking about plants, एक characteristic, उनके पास root, shoot and leaf present है, या फिर root, shoot and leaf नहीं है. तो इनके अंदर 3 आते हैं बच्चों. आल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है. ऑल दिस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. रूट शूट लीफ है भाई, यस. तो डू दे हैव सीड? डू दे हैव सीड और दे डू नॉट हैव सीड? अगर सीड है तो एंजियोस्पर्म्स होंगे, अगर सीड्स नहीं है तो जिम्नोस्पर्म्स. सॉरी, अगर सीड्स नहीं है तो इट विल बी योर टेरिडोफाइट्स. एम आई क्लियर? यस और नो? अगेन दिस नो नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, that we will be talking bit later on while giving information on. ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, that we will be talking while discussing plant kingdom and animal kingdom. लेकिन अभी के लिए I hope ये आपको समझ में आया. प्लांट के पास रूट शूट लीफ है. प्लांट के पास रूट शूट लीफ नहीं है तो इट कैन बी योर, वो कौन हो सकते हैं? यस, इट कैन बी योर, बोलिए फटाफट. इट कैन बी योर विदाउट सीड्स. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट सीड्स, तो इट कैन बी योर आल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. विथ सीड्स तो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में सीड नेकेड नहीं होते. अभी जो मैंने आपको बोला वो आपको नहीं समझ में आएगा. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है, ये यही चैप्टर में आपको समझना है. बट जस्ट आई वॉन्ट टू से यू हाउ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. एम आई क्लियर? यस और नो? फॉर दिस, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस कि भाई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में. यू हैव टू बिल्ड अ स्टोन वॉल. आपको क्या बिल्ड करनी है? स्टोन वॉल, पत्थर की दीवार. यू पीपल हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड द स्टोन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप. यस और नो? तो बच्चों, जो सबसे नीचे का लेयर होगा, द लोअर मोस्ट लेयर है ना, डिसाइड्स कि भाई कौन से पत्थर उसके ऊपर वेल शूट होंगे. राइट? देन सेकेंड लेयर इज गोइंग टू डिसाइड composition of third layer and so on. Are you people getting my point? Yes or no? So base पे जो stones है, you can compare the same with the lowermost characteristic decides characteristic of upper, which decides characteristic of upper and so on. ठीक है? And this constitutes hierarchy. This constitutes hierarchy, a system of grouping. That is what I mean by hierarchy, a system of grouping. उसको क्या कहा जाता है? hierarchy कहा जाता है. Am I clear? So dear student, I hope you understood that what is the base of classification. What is the base? Characteristic. ऐसे ही कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप नहीं ले सकते, है ना? Which characteristic is to be taken while classifying organism is very much important. Which decides subgroups, उसके अंदर subgroups, उसके अंदर subgroups. Am I clear? So I hope you people are getting this point really very well. Again, this video is just for understanding purpose. Again, for understanding purpose, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता. ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो कैरेक्टरिस्टिक. सिंपल एज दैट. एम आई क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो रियली वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.